MiG-21 is a very long story, and the fact that so many people have gathered here is the fact that we are all attached to this aeroplane, and more than 2,000 people are here, and more than about 7,000 people have been attached to this aeroplane over the years. As far as India is concerned, maximum number of aeroplanes flown on a fighter type, and that is the MiG-21. And if I don't know the statistics, but in the world over, I think before the F-16 came, the largest number of aeroplanes manufactured in this stream were MiG-21s. Very potent aeroplane, and mostly the Eastern Bloc countries, they flew it. It was an enigma for the Western field. They didn't want to know what exactly this aeroplane is. Very sleek, very thin, and very rarely picked up on the radars, and it could do its job very well. Shoot and scoot, and ground attack, very accurate firing, air-to-air firing, close combat, EW, electronic warfare roles, you name it, and it could do everything. Only thing is now technology has taken leap, and this airframe it doesn't have so many places to fit in all the latest things and the weight restrictions, the engine, etc. So now it's time for it to say goodbye, because things have changed a lot. But as far as the aeroplane is concerned, it's still fly-worthy. If somebody, a big guy wants to take 10 or 12 of these and start flying these aeroplanes, probably they'll carry on for another 20 years. There are such people world over, some private guys, they can fly this aeroplane, beautiful aeroplane. So one more question. So right now the MiG-21 is like very crucial role in 1965 war and 71 as well. And now we are celebrating the 60 years of victory of the Indo-Pak war. So you want to tell us about that, and tell about the youngster pilots who joined the army, who joined the air force. So tell us. Okay, so now as far as the aircraft is concerned, it delivered more than what we thought it will deliver, both in 65, 71, as late as Balakot, and even the latest Sindoor, they were all involved. So now the point is, everything has its age, fine. It's lived more and more beyond its particular age. For a young person, this will be a dream. They'll never see it. But these are the stepping stones of the Indian Air Force. Today we are going to be almost the most powerful Air Force in this part of the world, and third largest to fourth largest economy, fourth largest Air Force. So this is the mainstay. Of course, we are changing over to, again, we have a fleet of Su-30s, MiG-29s, you have Rafales, you have Mirages, and those days are different. But as far as flying was concerned, MiG-21 is a beautiful machine, and the testimony is so many people have descended from all over the country abroad to see the last flight and say goodbye. हम बहुत दूर दूर से आए हैं इस सेरेमनी को देखने के लिए और मिस नहीं करना चाहते थे. इसके साथ हमने बॉर्डर पे रहे हैं. इसने पूरे देश की सुरक्षा करते थे डे टाइम में, ORP जिसे कहते हैं, तो वो हमने इसके साथ किया. और ये ऐसा जहाज है जो कि इंडिया का बैकबोन है. सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसी जहाजों की थी. इसने बहुत बड़ा रोल अदा किया है. इसकी स्पेशलिटी ये है, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर ने बताया, कि ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था, और ये ऐसा एयरक्राफ्ट था जो कि 2 मिनट के अंदर अंदर स्टार्ट होना चाहिए, एयर में होना चाहिए. ऑपरेशनल रेडीनेस मतलब रेडी तैयारी, मतलब कोई अगर पाकिस्तान का जहाज बॉर्डर की तरफ आ रहा है तो 2 मिनट के अंदर अंदर ये एयर में हो जाता था. तो इस प्रकार ये हमारे बॉर्डर की सुरक्षा करता था. सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है ना, टेक ऑफ टाइम पे 90 डिग्री पे क्लाइंब करता है. आपने आज एरोबेटिक्स देखे होंगे. वन ऑफ द फाइनेस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड. इसका कंपैरिजन नहीं है. एज की वजह से इसको हमने जो है ना विदाई दे रहे, बट इसकी रिप्लेसमेंट नहीं है. एंड वी विश कि तेजस इसकी जगह ले. एंड अगेन वी आर थ्रिल्ड विद दैट courage. My name is one of the finest aircraft. I'm working on the aircraft. He's in Indigo. I'm in Indigo Airlines. Aircraft the Indian Air Force had since 1960s. ये 90 डिग्री एंगल पे जो टेक ऑफ के टाइम पे 90 डिग्री एंगल पे क्लाइंब करके एरोबेटिक्स करता है. ये स्पेशलिटी किसी और जहाज के अंदर नहीं है. दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेन. इसने हमारी जिंदगी बदल दी. इस जहाज में इतनी मेहनत कराया हमसे, और हमने इसके बाद इसकी मेहनत करते हुए भारतीय सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में काम किया. एज ए डिप्टी डायरेक्टर वहां से रिटायर हुआ, एंड ही स्टिल वर्किंग इन द इंडिगो. इट इज बिकॉज ऑफ दिस एयरक्राफ्ट वी वर्कड हियर ऑन दिस फॉर 15 years. द एक्सपीरियंस विच वी टुक विद दिस एयरक्राफ्ट मार्वलस, एंड वी होप कि तेजस इसकी जगह ले, एंड वी गिव वेरी वेरी गुड फेयरवेल फॉर दिस एयरक्राफ्ट. वेरी इमोशनल, वेरी इमोशनल, वेरी इमोशनल. We advise the youngsters. They should explore the Air Force capabilities. Keeping this as a base, they can induct themselves in the Indian Air Force
As a pilot, as a technician, as an engineer, as a ground staff, one of the finest future in the Air Force. उसके लिए थ्रिल होना चाहिए, मन में लगन होनी चाहिए. ये हमारे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट है वाकई. दिस वाज अ बैकबोन ऑफ द एयर फोर्स एंड वी डिड लॉट ऑफ फ्लाइंग इन दिस एयरक्राफ्ट. लवली फ्लाइंग दिस एयरक्राफ्ट. और अब क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, दिस एयरक्राफ्ट कैन नॉट सस्टेन इन द प्रेजेंट सिनेरियो, सो ऑफ कोर्स इट हैज टू रिटायर. फील्ड ऑफ एविएशन बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से भरी हुई है. तो मैं तो यही कहूँ कि ऑल यंगस्टर्स शुड कंटिन्यू टू लर्न अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजीज, कीप अब्रेस्ट ऑफ द न्यू थिंग्स हैपनिंग, एंड सो दैट व्हेन दीज टेक्नोलॉजीज कम इन आवर एयर फोर्स, they don't find it difficult to adapt to them. Yes, I'm an ex-Air Force officer, retired. I'm Squadron Leader Supriya Bhosle. और मैंने इस जहाज में एज अ AEM ऑफिसर काम किया है. और इसी जहाज के साथ मतलब मेरा एयरफोर्स का करियर शुरू हुआ. और इसी जहाज के साथ मतलब बहुत सारे मिशंस हमने टैगडी में, टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट में हमने पूरे किए हैं, जिसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी मौजूद थे. तो आई हैव बीन प्रिविलेज्ड serving this mighty aircraft, and in the history of probably 62 years, amongst 4-5 female officers, I have been blessed to be a part of this. Now, MiG-21 has been a part of us. Like, when we started flying, this was the aircraft that got us into the, Indian Air Force. It was the one that taught us the basic skills of flying. So every fighter pilot who has been here mostly has flown through this aircraft. They say it was unforgiving, but the experience was very enriching. It was one of its kind, and we still remember those days. And if there was a single day that we won't fly, it felt that there was something missing. जैसे नाश्ता नहीं किया हो, जैसे कुछ किया नहीं हो. It was that kind of emotion. So it was a wonderful, time that we spent flying this aircraft. Do you think that LCA will take forward this journey? See, there are two different aspects to itself. MiG-21 in its own time was manufactured for a purpose, and LCA has come up for a purpose, and both are equally potent, and they both have served their own, purpose, what they were there for. So I think it will do the justice, and it's an indigenous aircraft. LCA, it's got a long way to go. बहुत इमोशनल है आज. और 1999 में जून में मैं कमीशन हुआ था, और ये मेरा प्रथम फाइटर जेट एयरक्राफ्ट था. और इसमें मेरा तकरीबन 723 घंटे का एक्सपीरियंस है. मैंने लो लेवल फ्लाइंग की है, एयर टू ग्राउंड फायरिंग की है इसी जहाज पे. जो बेसिक फाइटर फ्लाइंग है वो इसी जहाज पे सीखी, और फिर तकरीबन 6 साल तक मैं इस वायुयान को मैंने उड़ाया है. 750 घंटे के करीब मेरा एक्सपीरियंस है. और उसके बाद मैं MiG-27 भी उड़ाया. पर इसके साथ जो साथ मिला इस जहाज का, वो एक मैं कह सकता हूं कि भूल नहीं सकता हूं कभी. और आज वो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश ने इस वर्क हॉर्स को पहचाना, और आज के दिन इसको इस प्रकार की श्रद्धांजलि और विदाई दी जा रही है. इस मशीन ने, इस फाइटर जेट ने हमारे देश की इतनी सेवा की है, और इतने वर्सेटाइल तरीकों से की है, और इतने समय में जितने युद्ध हुए हैं उन सभी युद्धों में इसने हिस्सा लिया है और अपने आप को प्रूव किया है. इसने बताया है कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट क्या है, और उससे भी आगे इसने ये बताया है एक फाइटर एयरक्राफ्ट जो एक भारतीय पायलट के हाथ में आ जाता है वो उसे क्या नहीं कर सकता. तो इसलिए इस फाइटर को हम सभी ने हर पॉसिबल रोल में उड़ाया है, और ये पूरे विश्व को दिखाया है कि देखो भारतीय वायुसेना का पायलट क्या है, क्या कर सकता है. और इस मशीन से तो जिन्होंने भी इसे उड़ाया है, उस मशीन से इतना प्यार है, इतना अच्छा है कि इसको जो कुछ भी कह लें. पहले कुछ सालों पहले इसके बारे में, इसके एक्सीडेंट्स के बारे में बहुत सी बदनामी भी की गई थी, लेकिन एक बात को हम भूल जाते थे कि जितने भी फ्लाइंग आवर्स, जितनी भी सॉर्टीज MiG-21 की होती थी,
उनके मुकाबले बाकी सब फाइटर्स को इकट्ठा करके आप गिन लो तो वो कम रहती थी। तो जो मशीन ज्यादा उड़ेगी उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियां भी होंगी, और ऊपर से जिस टाइप का रोल इस मशीन ने हमें वो फुलफिल किया है, उसको देखते हुए तो इट हैज बीन अ वेरी safe flying machine. I'm standing here as a proof of that, and I'm so happy to have done so. देखिए, इसको फ्लाई करते समय हर पायलट के साथ कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट्स आते रहे हैं, मेरे सामने भी आए हैं। कुछ ऐसी चीजें हुई हैं और कुछ चीजें की गई हैं जो सामान्य तौर पर नहीं की जाती। तो जैसे मैंने कहीं पहले भी शेयर किया है, एक ऐसा समय आया था कि ये जहाज, ये फाइटर इन्वर्टेड स्पिन में चला गया था, और उसके बाद इसको किस प्रकार अपनी ट्रेनिंग को काम में लाकर इसको रिकवर किया और सेफली वापस लैंड किया। अगर कोई किसी पायलट से पूछा जाए कि ऐसे उसमें क्या वापस आना हो सकता है, एक रेयरिटी होगी, हाँ, लेकिन हो सकता है, और हुआ।